advanced to student of MBA. She also administers a portion of research methodology coursework to doctoral studies scholars. Before joining the university, she had a brief professional stint at UG, PG, and MPhil teaching at Banasali Vidyapeeth. At the university, Dr. Mathur handles and balances multifaceted administrative assignments, including position of UGC nodal officer, BCI nodal officer, NEP nodal officer, chairperson, prosperous committee, members, internal complaint committee, members, disciplinary council, women and member, university publications committee. On behalf of Research Department, University of Kota, I welcome you, ma'am. Please start the session. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you. What I want to know first of all is that I'm clearly audible. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Thank you. Yes. So let me start sharing the screen and then accordingly we'll take on from there. Yes, please. So is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just let me put it into PPT mode. So is it okay now? Visible as a full screen? No, Yes, ma'am, ma'am. but yes. Slideshow. It is in slideshow mode, right? Yes, please. Visible? Yes, ma'am. Just a second. And my voice is audible. There is no problem with my voice. Very much audible, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Audible है. Thank you so much for the confirmation. So now what I'd like to start with, and I am not pretty sure whether you people have had any other language lectures before this one. So I just wanted a brief from you people. Have you had any other lectures, and is this a follow-up or is this the beginning? Ma'am, हमारे Ma'am, this is the lectures हो beginning. गए हैं. English. Okay, so this is the But in this topic, Mhm. it's Stop beginning. it, waiver. In this topic it is. Please repeat. It is beginning topic. It's a beginning topic. Okay, thank you so much. So now, considering that when we begin at the beginning, and all of you are doctoral level scholars, और मुझे ये भी कहा गया है कि थोड़ा थोड़ा हिंदी में बीच में बोलें. तो I am going to try कि थोड़ा थोड़ा मैं हिंदी में बोलूं, हिंदी English both. Although I am more comfortable speaking in English formally, informal conversation में हिंदी चलता है. But now formally, इतने साल की training के बाद, it is like I have to speak in English, right? So I am going to try. Let us see. So before we look at sentence fragments, run-ons, our first topic for the first hour, 3 to 4 o'clock, we are going to first look at what constitutes a sentence, what are parts of speech. All these small things require some. Sorry to interrupt, ma'am, but it is not beginning, it is follow-up. It is a follow-up topic. So what have you studied before this, please? We have talked about parts of speech and parts of sentences last 2 or 3 days. Okay, decent. So that I wanted to be sure of, so that I don't spend too much time on this. I'm happy. Parts of sentence and parts of speech and sentence patterns also you've done.
Have you done sentence patterns also? Which kind of Yes, ma'am. Yes, sentence? ma'am. Okay. Okay. ठीक है. No problem. So we are at least since it's important to know that we are not starting at the beginning, but you people have some knowledge. So sangya, sarvanam, kriya, noun, pronoun. विशेषण, क्रिया विशेषण. जी क्या? Adverb. Adverb. Ma'am, he is saying adverb. Adverb. हाँ. So if you recall, मतलब I remember from my school days, कर्ता ने कर्म को कर्ण से अकारण से. उपादान से अलग होने के लिए. Yes. So that is how you identify the markers. Ma'am, it's preposition. Preposition. Ma'am? What is a preposition, ma'am? You said na recently कर्ता ने कर्म को. हाँ. So this is Yeah. applicable for all, no? कर्ता ने कुछ किया, कर्म से कुछ हुआ. This is to help identify हिंदी के वाक्य में कि क्या क्रिया है, क्या संज्ञा है, क्या सर्वनाम है. उसके लिए ये प्रैक्टिस स्कूल में सिखाई जाती थी. ओके. नाउ व्हाट इज अ सेंटेंस? हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि वाक्य क्या है, बिकॉज सेंटेंस रन ऑन जो हमारा टॉपिक है वो वाक्य की अपूर्ति, जहाँ पे वाक्य खत्म नहीं हो पा रहा है या फिर जहाँ पे वाक्य कंप्लीट नहीं है, उसमें A group of, ma'am, a group of words containing a subject and a verb that And a expresses subject. a statement. Yes, and usually there are some ways to find a sentence. First, it starts with a capital letter, then it ends either with an exclamation or a full stop or a question mark. And then, so all of these things might be there. Subject भी है, verb भी है, capital भी है, full stop भी लग रहा है, लेकिन अगर उसका कोई समझ नहीं निकल रही है, if it is not making sense, तो उस sentence का कोई फायदा नहीं. Is the idea. तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि भाषा का उपयोग. और आप सब पीएचडी स्कॉलर हैं, आप पीएचडी स्कॉलर बहुत अलग अलग डोमेन से होंगे. कोई साइंस का होगा, कोई ह्यूमैनिटीज का होगा, कोई मैनेजमेंट का होगा, कोई सोशल साइंसेस का होगा. जो आपका सब्जेक्ट का ज्ञान है वो एक तरफ है, और जो भाषा का ज्ञान है वो एक तरफ है. किंतु जिस तरह से अपने शरीर में, हाउ इन आवर बॉडी the bones and the muscles and the blood works together, in the same way along with the subjects the language works. अगर आप सोचें तो साइंस क्या है विदाउट द लैंग्वेज ऑफ साइंस? वो लैंग्वेज ही है जिसके थ्रू हम कुछ कर पाते हैं. जैसे कि हमारा मनुष्य शरीर है, we've got various parts, लेकिन हमारा एक ब्रेन है जो कि हमसे कुछ करवाता है, अदरवाइज आवर बॉडी विल रिमेन स्टैग्नेंट, है ना? तो उसी तरह से लैंग्वेज इज दैट स्पिरिट व्हिच मेक्स आवर बॉडी वर्क. Language is a system of communication, ma'am. Yes, it is a system of communication. It is what makes every subject make sense. Now, doctoral research scholars, it is very important. If you'll just excuse me. For doctoral research scholars, it is very, very important to use correct academic language. For that, they should be in a position to frame proper sentences. And there cannot be any laxity in doing that. Since you said that you have done sentences, usually, I hope this slide, although it's not appearing very clear to me, maybe there is a problem with my connectivity. Largely, 3 types of sentences: simple, compound, and complex. Simple sentence has 1 clause. What is a clause? It is a unit which has a subject and a predicate. I like tea. I dance. Subject, object. Simple. Compound sentences where 2 clauses are joined by some type of conjunction. Conjunctions can be coordinating to join equals or subordinating, which conjunction places one clause at an independent level and another at a dependent level. So compound sentences, independent clauses are joined together. I like to eat, I like to dance.
I like to eat, but I do not like to dance. Right? Complex sentences, one independent clause and one dependent clause. Why are we looking at all of this? Dekhiye, when you go about to write your synopsis, when you go around to write your PhD, when you get ready to publish before submitting your final research thesis, it will be important at that point of time to earmark as to what type of sentences are you going to use. They cannot be all simple sentences. I studied this. My primary sources are this. This is my research objective. My research question is this. Sometimes we are going to use it, but all the time also. So we have to keep a perfect balance between something which is not understandable at all, something which is too simple, something which is too complex, something whose sense gets defeated by the way it is employed. Right? Now, आप लोगों ने क्या सेंटेंस पैटर्न्स किए हैं पिछली कक्षाओं में? Yes? Not audible, please. Please, No, not audible. Please, some clarity. pardon. I'm asking, have we done sentence patterns in the classes which have gone by? No, ma'am. Okay. So now, sentences can be divided into certain patterns. So everywhere, clothing, there is a pattern. How to build a house, there is a pattern. How to do research, how to do empirical research, how to do doctrinal research, there is a pattern. In the same way, how to frame a sentence, there is a pattern. So first pattern, and after every one pattern I'm going to explain, I expect one example or two examples so that, there is clarity in the way we are moving forward. So first pattern, subject and verb. Verb is an action word. Subject can be I, me, you. It can be a noun. It can be a pronoun. It can be object. The statue fell is subject plus verb. The birds are chirping. The flowers are blooming. The students are studying. Are here is a helping verb, and the main verb is study. So first pattern, please. Clear? मैम आपकी स्लाइड में कुछ दिख ही नहीं रहा। नहीं दिख रहा? वन स्लाइड ही आ रही है, उसके बाद नहीं आ रही। Just a second. अब आ रही है? No, stop No, sharing. ma'am. दिया मैंने, 1 मिनट है. So if I don't put it in PPT mode, but I just use it in normal mode now, is Yes, it? ma'am. Yes, ma'am. Yes. Is Yes, it? ma'am. Okay. ठीक लग रहा ना आपको? कोई दिक्कत नहीं है ना? No, ma'am. Okay, decent. I don't know what is happening, but it's okay. English teachers cannot be expected to be very techno computer savvy also, right? So our first pattern is subject plus verb. There are various sentence patterns. You should know, as I said, there is a pattern in human clothing, patterns in food habits also. There can be patterns in everything. In the same way, in formation of sentences also, there are patterns. Our first pattern is subject plus verb. Verb is any action word, right? So people who are raising their hands, are they raising their hands just like that, or do they want to say anything? There are 13 people with their hands raised. People don't know how to use this symbol. Okay. Hello. So probably how they are putting thumbs up, they are raising their hand. Yes. Ma'am, they are showing their presence that yes, we are very much present in the class. Okay. So that's great. Crazy Thank you. guys. Mhm. Again, 12 people have raised their hands. I don't know. Chalo.
whatever. So I can't keep concentrating on what people are trying to convey. But because this is not a language of communication, this is not a communication class and non-verbal communication, we are going to focus on sentence patterns. And it will take some time. So subject plus verb, action word plus subject. So the teacher teaches, the students study, right? Various ways. To this Sudesh, Meena, whoever, my boy, settle down. Okay. Now, second type, and I was anticipating that after every pattern, I will get an example from you people. So subject verb, simply, identifying the girl dances, the baby sleeps, the boy walks, the mother cooks, the cleaner cleans, whatever. Subject verb object. Object is, as in the action is transferring to another person. So the boy kicked the ball. I have a pencil. Yes, somebody? Okay. I have a pencil. Uh, the the girl danced for the audience. The student scored for his parents, and various other usages of subject verb object. As against it, the third pattern is subject verb complement. What is the difference between an object and a complement? So object is when the action is moving from one to another. Complement is when there is some. Sapna Kumari says English literature and medium, ma'am. नहीं, हिंदी भी अगर, but मैं प्राइमरीली इंग्लिश की टीचर हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी, जबकि मैं भी पूरी हिंदी में ये सारी चीजें नहीं बता पाऊंगी. एंड स्टिल आई थिंक मोस्ट पीपल दे विल हैव टू राइट देयर thesis in English. So please try to get the knowledge of the sentence pattern. Now, G. Okay, ma'am. Yes. Subject verb complement. Object, second pattern, subject verb object, was aiming at saying the action is moving from one to another. Complement is when you are, जब आप मेंशन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की ही कोई क्वालिटी. I am a cricket fan. She is a dance enthusiast. So it is not she went to the dance or she went for the class is subject verb object. But the class was engrossing or interesting. That will become a complement where subject के बारे में कुछ बताया जा रहा है. Right? जब verb या क्रिया के बारे में कुछ ज्यादा बताया जा रहा होता है, तो फोर्थ पैटर्न आता है adjunct. Adjunct का क्या मतलब है? Which, जो कि verb या क्रिया के बारे में ज्यादा बता रहा है. तो subject, verb, adjunct. Subject, he, verb, arrived, adjunct, early. Early, late, higher, lower, जहां पर की क्रिया के बारे में इंग्लिश में एडवर्बियल भी कहा जाता है इसको. कई जगह इसको एडजंक्ट कहते हैं, कई जगह पे इसे एडवर्बियल कहते हैं, जहां पे क्रिया के बारे में और वर्ब के बारे में ज्यादा जानकारी दी जा रही हो. सो अर्ली, लेट, डाउनस्टेयर्स, अपस्टेयर्स, स्लोली, फास्ट. ही रैन फास्ट. ही रैन टू द शॉप. थर्ड पैटर्न. The second pattern, he ran slowly, complement. He ran in order to reach his destination, adjunct. So object, complement, adjunct, तीनों second, third, fourth pattern basically लगभग एक समान है सब्जेक्ट और वर्ब की प्रेजेंस पर. खाली क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट, जहां पे कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है. कॉम्प्लीमेंट जो कि सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, और एडजंक्ट जो कि वर्ब के बारे में बात कर रहा है. पांचवा पैटर्न, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, माय फ्रेंड्स मेक मी हैप्पी. कॉम्प्लीमेंट, हैप्पी, सैड,
joyful, tragic, joyless, dismayed, ये सब कॉम्प्लीमेंट के प्रकार हैं. 6, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्बियल या एडजंक्ट. Near, far. My birthday is very near. It is my birthday next month, next year. It is my 18th birthday next May. Like that. यहाँ पर adjunct या adverbial जो कि verb के बारे में बता रहा है. My birthday और कब है आगे जाकर है. So it When adjective is added with the verb, then it becomes adjunct. but it's just that adjunct, some people call it adverbial. Some dictionaries will say this is adverbial. Some people will say that it is adjunct. I think it is an adverb or a phrase that adds meaning to verb, ma'am. Yes, no, as I said, no, the adjunct is contributing towards the verb only. With the Verb verb only, na? only. Adding some meaning to verb. Yes, meaning or giving more specification to the verb. Yes, yes, ma'am. Heavy, light, near, far, early, late, right? 7th pattern is subject verb, indirect object and direct object. Indirect object, simple. Let's see, don't look at indirect, direct, just look at the final object. The board offered the job. Whom did they offer the job? Offered me is not sufficient. So you need both the objects, indirect object and direct object, in order to make sense. The board offered me a job. The board offered a job, subject verb object. ठीक है, but किसको job मिला? तो me. So offered me the job. Adjunct, here the adverbial, which is going to give talk more about the verb. Look at it. Suddenly it grew dark. Grew, ka, more information, adjunct. Subject verb object adjunct. Every year we visit the orphanage. कब visit करते हैं? हर साल visit करते हैं. ये पैटर्न हम आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये पैटर्न हम आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा टॉपिक है वो तब तक नहीं समझ आ सकता है जब तक कि हम ये न समझ लें कि बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स क्या है. यस, सो क्या स्लाइड चेंज हो गई? Yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. ओके, हो गई मैम. हाँ जी. नाउ Excuse me, ma'am. यस Ma'am, प्लीज. I did not able to understand the 8th point. Can you please repeat this point? हाँ, of course. 8th. So if you look at the 8th one, you will see that adjunct subject verb complement. What is a complement? Complement is describing something. Heavy, light, dark, pretty, whatever, ugly, like that. Adjunct is commenting on how the rest of it grew dark. ठीक है. But how did it happen? It happened suddenly. So the focus on adjunct, suddenly. So that is how the sentence is framed. Wherever you want to express or give a lot of emphasis to whether a thing happens slowly, fast, quickly, expectedly, unexpectedly, you use adjunct first. Is the pattern. Okay, ma'am. Thank you. Yes. Next, 10th. Adjunct subject verb, indirect object and direct object. Yesterday. Again, adjunct का usage देखिए आप. Yesterday, today, tomorrow, right? Specification of time. My mom, who's the subject, bought the verb, me, a bicycle. Yesterday, my mom bought a bicycle. ठीक है, but you'd wonder, mummy bicycle क्यों खरीद रही है? Yesterday, my mom bought me. What am I to be bought and sold in the market? Right? So my mom bought me a bicycle. Both are important, indirect object and direct. 11th,
subject, verb, adjunct and adjunct. We meet every. Now, if you see, one adjunct can also do the task. Both of them can also do. We meet on the way back home. Okay. We meet every evening. We meet every evening on the way back home and eat peanuts. Right? So this subject, verb, adjunct, SVAA pattern can be continued on and on. We meet every evening on the way back home and then sing a song. So any number of additions can be made. These sentence pattern additions are important in order to understand how you are going to frame a sentence. So now this sentence structure. सेंटेंस स्ट्रक्चर की क्या जरूरत है? सेंटेंस स्ट्रक्चर इसलिए जरूरी है कि हमें ये पता लगे कि हर एक शब्द अपने सही स्थान पर है और वो अपने सही स्थान पर होने से ही सेंस लगता है। मैं लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। मैं आपको बताऊं कि लीगल सिस्टम में, देश के कानूनों में, जब एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट और कहाँ पे वो किस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जब आपकी पीएचडी थीसिस, आपकी सिनॉप्सिस कहीं पर भी जाएगी, अप्रूवल के लिए भी जाएगी, तो वहां पर शब्दों का किस तरह से उपयोग हो रहा है सेंटेंस में, वाक्य में, उसकी बहुत ज्यादा समझ होनी जरूरी है। ओके, अब हमने देख लिया कि वाक्य क्या होता है, किस प्रकार के वाक्य होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। वाक्य को बनाने के क्या पैटर्न होते हैं, सेंटेंस पैटर्न। अब हम ये जान लें कि क्या वाक्य नहीं होता। क्या वाक्य नहीं होता है? जहां पर एक इनकम्प्लीट सेंटेंस हो, फ्रेगमेंट हो। फ्रेगमेंट मतलब सिर्फ एक टुकड़ा हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब भी हो ही सकता है, सिर्फ सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हो, वर्ब मिसिंग हो। राइट? शी डांसेस ब्यूटिफुली, इसमें से मैं डांसेस हटा देती हूँ, शी ब्यूटिफुली, इसका क्या सेंस है? इसका कोई सेंस नहीं। राइट? तो फ्रेगमेंट का मतलब है जहां पर अधूरा वाक्य है। दूसरा तरह का रन ऑन सेंटेंस, जो कि एक्चुअली हमारा टॉपिक है आज का। रन ऑन सेंटेंस का क्या मतलब है? जहां पर हमने पढ़े कंपाउंड सेंटेंसेस, हमने कहा कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक साथ डाल रखा। बट रन ऑन सेंटेंस में क्या हो रहा है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। आप सबको पता है कि पंक्चुएशन मार्क, कॉमा, खड़ी पाई, अब हिंदी में क्या कहेंगे, खड़ी पाई एंड फुल स्टॉप एंड कॉमा। जी, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, हाँ, अल्प विराम, पूर्ण विराम। राइट? रन ऑन सेंटेंस वो होता है जहां पर कि पंक्चुएशन मार्क्स सही प्रकार से नहीं लगे हैं और उसमें बहुत सारे ट्रेन के डब्बों की तरह, वैसे तो आप देखा जाए तो ठीक, कोई ट्रेन में तो 10 भी डब्बे हैं और कोई ट्रेन में तो 60 भी डब्बे हैं, बट वो सब एक ही ट्रेन कहलाते हैं क्योंकि वो एक ही से कंट्रोल्ड होते हैं, जो कि है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। सो रन ऑन सेंटेंस की क्या दिक्कत है? एक ट्रेन जिसमें बहुत ज्यादा डब्बे हैं और वो ट्रेन फिर मुश्किल से ही चलती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि 2 इंजन की ट्रेन होती है क्योंकि उसको चलने में दिक्कत आती है। नाउ अब कॉमा स्प्लाइस, ये तीसरे प्रकार का वाक्य है जो कि एक्चुअली वाक्य नहीं कहा जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को खूब सारे कॉमा लगा लगा के ज्वाइन किया है ना। मैंने आपके लिए कॉमा स्प्लाइस, आपका टॉपिक नहीं है, फिर भी मैंने आपके लिए एक उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है। एक राइटर थे चार्ल्स लैम्ब और वो 1840, 50, 60 में लिखा करते थे। उनकी क्या आदत थी कि वो बहुत लंबे लंबे वाक्य लिखते थे, एक पेज में एक वाक्य। जबकि अगर आपको याद हो तो आपके स्कूल में टीचर्स ने आपको यही सिखाया है
कि वाक्य उतना ही रखो जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंटली अपन पढ़ सके। तो अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए। When I think how welcome the sight of a letter from the world where you were born must be to you in that strange one to which you have been transplanted, I feel some compunctious visitings at my long silence. ये इनका एक वाक्य है। तो अब ये इसका कहाँ तो वर्ब ढूंढे, कहाँ इसका सब्जेक्ट ढूंढे, क्योंकि आई फील, आई थिंक हाउ वेलकम द साइट ऑफ अ लेटर विल बी टू यू, तो फिर भी टॉलरेबल है। बट ये इन्होंने इतना लंबा कर दिया कि ना उसका सर निकल सकता है ना पैर निकल सकता है। अब हमारा फोकस रहेगा रन ऑन सेंटेंसेस पे और सेंटेंस फ्रेगमेंट, है ना, जो कि टुकड़े ही लगे हुए हैं सिर्फ, और जहां पर एक सेंटेंस के अंदर दूसरा सेंटेंस ज्वाइन होता जा रहा है और एक सेंटेंस का अंत नहीं है। तो हमारा मेन फोकस अब इन दोनों टॉपिक पर रहेगा। यस, तो अब देखिए सेंटेंस फ्रेगमेंट, जिसका कि या तो क्रिया नहीं है या इसका सब्जेक्ट नहीं है या दोनों नहीं है। रन ऑन सेंटेंस, जो कि एक्चुअली दो वाक्य होने चाहिए लेकिन जबरदस्ती से उनको एक वाक्य में जोड़ा गया है, तो रन ऑन सेंटेंस कहेंगे। अब अपन ये देखते हैं कि इनके उदाहरण क्या है। व्हाट आर द एग्जांपल्स? ओके, नाउ फ्रेगमेंट्स आपको बचपन से ही ये तो सिखाया ही होगा कि इंग्लिश सेंटेंस कभी भी एंड से शुरू नहीं होता है ना। तो ये भी एक ध्यान रखने की बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं बिकॉज से भी नहीं होता है। कईयों में ऐसा कहते हैं कि देखिए फ्रेगमेंट तभी भी बनता है कि आप वेराज से शुरू मत करिए, वेराज ओनली कंपाउंड सेंटेंस में बाद में आ सकता है ना। तो अब देखिए, incomplete, a sentence can be a fragment if it begins with words like which, because, although, before, while. Before का मतलब है कि before I go to sleep, हाँ फिर, but it should have another clause in order to make it a complete sentence. While I am eating, हाँ ठीक है, while I am eating what, इसके आगे आपको एक और क्लॉज लगाना पड़ेगा, तभी while I am eating का कोई सेंस निकलेगा। Whenever I sleep, unless I don't see my daughter, फिर तो ये ऐसे वाक्य हैं जहां जो आपने शुरू कर दिए, लेकिन जब तक कि आप एक और सबऑर्डिनेट क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज इस पर नहीं लगाएंगे, तब तक उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर क्यों पढ़े? आपको ये बताने के लिए कि देखिए कंप्लीट सेंस बनाने के लिए छोटे से छोटे सेंटेंस में ये भाग्य होने चाहिए, ये भाग होने चाहिए, सॉरी। While she was sleeping, if I go to the florist, then if भी हमने कुछ कंडीशन लगा दी, if I go to the florist, I will bring you flowers, I will pay the bill, I will do whatever. Fairy princesses from the sky, then ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। एक्सक्लेमेशन होता तो मैं कहती अरे फेरी प्रिंसेस हैव कम डाउन फ्रॉम द स्काई, बट फुल स्टॉप है, क्या मतलब है? पीपल दैट लाफ। तो अगर हम सिर्फ इतना सा लिखते पीपल लाफ तो भी ठीक था, इट इज अ फुल सेंटेंस, पीपल लाफ। बट पीपल दैट लाफ कोई मतलब नहीं है। पंपकिंस ग्रो इन द ग्रास अगर मैं लिखती तो बिल्कुल बढ़िया है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, pumpkins grow in the grass, but pumpkins in the grass इसका कोई महत्व नहीं है। shows no improvement in any of the vital signs, जो भी यहाँ पे मेडिसिन या मेडिकल के रिलेटेड फील्ड के होंगे वो ये बहुत आसानी से ये सेंटेंस पहचान पाएंगे। shows no improvement in any of the vital signs, who सब्जेक्ट मिसिंग है। patient shows no improvement, the discharged patient shows, the victim shows, the accident victim shows। कौन है? तो अब देखिए कि कहीं पर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज नहीं है, कहीं पे सब्जेक्ट नहीं है, कहीं पे प्रेडिकेट नहीं है।
द डॉक्टर्स, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक सेंटेंस देख लेते हैं. द डॉक्टर्स हु वर यूजिंग peer reviewed research articles that contributed to the body of knowledge in their fields, which was obstetrics. इसका कोई मतलब नहीं, इतना लंबा होगा, लोग सोचेंगे अरे इतना लंबा है, इसमें तो कुछ ना कुछ मतलब निकल ही रहा होगा, बट इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं किया है. तो एक जगह पे सब्जेक्ट मिसिंग है, एक जगह पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है, एक जगह पे कुछ मिसिंग है, तो उस वाक्य का कोई मतलब नहीं निकल पा रहा. अब ये दूसरा देखिए, रन ऑन sentences. When two or more independent clauses are connected improperly. I love to write papers. I would write one every day if I had the time. हाँ, यहाँ पे देखिए कि कोई भी मात्रा नहीं लग रही है, कोई भी कंजा है ना, साइन नहीं लग रहा है, ना कॉमा लग रहा है, ना फुल स्टॉप लग रहा है. तो अब ऐसे वाक्य क्या करें? आई लव टू राइट पेपर्स, ये रन ऑन है, एक सेंटेंस. आपको स्कूल में टीचर्स ने सिखाया होगा कि बहुत फ्रीक्वेंटली सोच समझ के फुल स्टॉप लगाओ. क्यों? क्योंकि फुल स्टॉप से एक कंप्लीटनेस इन थॉट आता है. पार्टिसिपेंट्स कुड लीव द स्टडी एट एनी टाइम. दे नीडेड टू इंडिकेट देयर प्रेफरेंस. इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, इसको दो सेंटेंसेस में डिवाइड भी किया जा सकता है, इस रन ऑन सेंटेंस को. तो ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो आपका सेंटेंस है वो अपने आप से, देखिए एक तो ये बात हो गई सेंटेंसेस की. एक बात लोग आगे जाके कहेंगे आपसे पैराग्राफ, आपसे कहेंगे कि देखिए पैराग्राफ में ध्यान रखिए कि जब आप एक पैरा बनाते हैं तो उस एक पैरा का मतलब पूरा का पूरा उसी में अवेलेबल होना चाहिए, वो एक ही बात से कनेक्टेड होना चाहिए. फिर आपसे लोग कहेंगे सब हेडिंग, हेडिंग चैप्टर. जब आप अपनी थीसिस लिखने के लिए जाएंगे तो वो कहेंगे कि देखो जो तुम्हारे चैप्टर का हेडिंग है, जो तुम्हारी सब हेडिंग्स हैं, जो तुम्हारा पैराग्राफ है, उसके बारे में जो भी ज्ञान आपको देना है वो एक ही जगह पर देना है. ये नहीं हो सकता है कि आपने बात करना शुरू किया किसी बारे में और शुरू बीच में आप किसी और चीज पे पलट गए. तो हमेशा डॉक्टरल लेवल स्कॉलर्स को तो ये देखना बहुत ही जरूरी है कि वो ये गलतियां ना करें कि अपने वाक्यों में, अपने पैराग्राफ में, अपने हेडिंग्स में ऐसी चीज डालते हैं जो कि वो उस जगह पर नहीं होनी चाहिए उस समय. अब बताएं कि अब मैडम आपने तो बता दिया कि रन ऑन और फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, लेकिन अब हमें पता कैसे लगेगा कि ये रन ऑन है, ये फ्रेगमेंट है? अभी हम उसको तभी ठीक कर पाएंगे ना जबकि हमें इस बात का ज्ञान या संज्ञान होगा कि हम कुछ गलती कर रहे हैं और वी आर मेकिंग एन एरर ओनली, देन कैन वी करेक्ट दैट पर्टिकुलर. अब आपको पता है कि जब हम बोलते हैं, व्हेन वी स्पीक एंड व्हेन वी राइट, देयर इज अ डिफरेंस. जब हम बोलते हैं तो आपको पता है कि एक लंबा सा शब्द बोलने में भी, फॉर एग्जाम्पल मेटामॉर्फोसिस, मैंने 3 बार अपनी सांस ली है और छोड़ी है. तो आपको पता है जब हम बोलते हैं तो हर शब्द के साथ हमारी सांस कम ज्यादा है ना. तो पहली बात तो ये है कि बोलने में भी आपको ये ज्ञान पड़ जाता है कि ये वाक्य कंप्लीट नहीं. और जब आप उसको बोल के बताते हैं, जैसे कि अपन ये पिछला वाला देखिए, आई लव टू राइट पेपर्स, आई वुड राइट वन एवरी डे इफ आई हैड द टाइम. वो आपको बोलने में ही पता लग रहा है कि ये तो 2 होने चाहिए. आई लव टू राइट पेपर्स, आई वुड राइट वन एवरी डे इफ आई हैड द टाइम. बिल्कुल दिख रहा है कि ये 2 अलग यूनिट्स. आई लव टू राइट पेपर्स, आई वुड राइट वन एवरी डे आई हैड द टाइम. स्टिल कितनी भी जल्दी जल्दी बोल के देख लोगे बट यू विल स्टिल रियलाइज कि एक सेंटेंस को बोलकर देखने पे पता लगता है कि हाँ ये अभी इसको एक पॉज की जरूरत है, इसको एक ब्रेक की जरूरत है. देन कभी आप इसमें कॉमा लगाएंगे,
कभी आप फुल स्टॉप लगाएंगे, कभी आप सेमीकोलन लगाएंगे। अब कॉमा, अगर आप पिछली वाले में देखें तो कॉमा, participants could leave the study at any time, they needed to indicate their preference। तो भाई क्या करना है इनको, प्रेफरेंस इंडिकेट करने के बाद दे कैन गो अवे एट एनी टाइम, इज व्हाट इज बीइंग सेड। सो द thing which is to be done later is put first. They needed to indicate their preference comes first in action, and then the participants could leave the study at any time. This is what is the clarity of thought. But here, comma in a way makes up for the problem which is existing. आप कॉमा, सेमीकोलन का यूजेज, बेसिकली सेमीकोलन बहुत काम की चीज है, जहां कि हम फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहते हैं, वाक्य को तोड़ना नहीं चाहते हैं, उसी वाक्य के साथ चलते रहना चाहते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम सेमीकोलन के माध्यम से बहुत सारी चीजों को एक साथ लगा सकते हैं। सेमीकोलन इन अ वे बहुत बड़ा काम करता है, जहां पे फुल स्टॉप भी कई बार फेल हो जाते हैं, वहां पर सेमीकोलन का काम होता है। Another way to identify sentence fragments and run on is to use a proofreading tool or software that can highlight and suggest corrections। अब आपको ये भी बता दें कि यूजीसी, आपका विश्वविद्यालय यूजीसी के अंडर, आपको पता है कि यूजीसी से कहती है कि हर एक यूनिवर्सिटी को प्लेजियरिज्म सॉफ्टवेयर पे चेक कराना है कि आपने जो थीसिस लिखी है वो कहीं से कॉपीड थीसिस तो नहीं है ना। उसी प्रकार बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे कि एक टूल है, सॉफ्टवेयर टूल्स आते हैं, जैसे कि एक टूल है जिसका नाम है ग्रामरली। ग्रामरली अगर आपने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिया, एक उसका पेड वर्जन आता है जो एडवांस्ड होता है, और एक उसका बेसिक वर्जन आता है जो कि फ्री होता है। ग्रामरली में क्या काम किया जाता है कि ग्रामरली में वो आपको सेंटेंस में बताते हैं कि आपकी सेंटेंस में ये गलती, और आप उसे करेक्शन करिए। अब देखिए, मेनी पीपल विल से आई डोंट नीड टू बी टोल्ड, बट आपको ये बताएं, होता क्या है कि जब हमें कोई बताता है, हमारे घर में हमारे पिताजी, हमारे माताजी, पेरेंट्स, whoever, teacher in school, when we were in kindergarten school, what do? They tell us कि देखो ऐसा नहीं ऐसे कर, ऐसा नहीं ऐसे कर। And over a period of time, when we are told again and again, then we tend to improve। तो वैसा ही इन सॉफ्टवेयर्स में कि अगर आपको वो बताते हैं बार बार कि यहाँ पे आप एरर कर रहे हो, आपका सेंटेंस का कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, वो पूरे सेंटेंस को लाल से मार्क करके दिखा देगा कि ये देखो यहाँ पे तुम्हारा एरर है। तो फिर क्या होगा कि हम इस स्थिति में पहुंचेंगे कि हम उसको करेक्ट करें, और फिर धीरे धीरे हम उससे सीखेंगे। तो ये तो है कि सबको अलग अलग प्रकार का ज्ञान होता है, बट वी कैन डेफिनेटली टेक हेल्प in correcting whatever type of error we are making, है ना। एक, अब ये तो अपन ने बात कर ली कि क्या हम क्या कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि हम किस प्रकार से कर सकते हैं, how to correct sentence fragments and fragments, what are the various approaches, methods for correcting। One, add or remove words, do some addition deletion in words, put comma, semicolon, colon, dash, separate the clauses, look carefully at the clause, can a clause exist as an independent sentence, use conjunction, and, but, or, so, for, nor, yet, however, to join or contrast the clauses. Subordinating conjunctions, so we did coordinating conjunctions where two equal sentences are getting fused together. I love mangoes, I love apples. I love mangoes and I love apples. Coordinated. I am, I'd say, I am, anorexic will be too tough. I am disciplined. I eat only when necessary. I eat only when necessary because I'm disciplined. Although I am disciplined, I eat only when necessary.
Since I am disciplined, I eat only when it is necessary. While I eat only when it is necessary, I am disciplined. तो आप ये देखिए कि कंजंक्शंस का यूज करके दो प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, आप वाक्यों के बीच के रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं. You can rewrite, reorganize the sentences to make them clearer and more concise. तो आप वाक्यों को वापस से लिख के देख सकते हैं, सेंटेंस पैटर्न के जो प्रकार हैं उसके बेसिस पे वापस से लिख के देख सकते हैं. तब आपको कुछ बेहतर क्लैरिटी रन ऑन सेंटेंस और सेंटेंस फ्रेगमेंट्स में दिखाई देने लगेगी. Yes. What is the important thing? Nothing is a gift of the gods, right? When we learn how to walk, when children learn, toddlers learn how to eat, when we learn our first alphabet, when we learn cycling, when we learn how to drive a car, when we learn any kind of a new skill, we realize that, it doesn't come automatically. Many people have God's gift, but you have to see that not everything comes spontaneously. So practice and improve. बहुत सारे लोग होंगे इस क्लास में जो कि कहेंगे कि मैडम हमें मुश्किल लगता है, इतना आसान नहीं है जितना आप कह रहे हैं. कोई भी चीज करने में बहुत समय लगता है, और अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम पीएचडी लेवल पर आ गए हैं, तो अब तो हम कुछ नहीं कर सकते. बट आपको पता है कि आपके सुपरवाइजर, मेंटोर, अब तो है ना यूजीसी रूल्स के हिसाब से रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है हर एक स्कॉलर की. आपको देखिए, आपने ऐसा क्षेत्र चुना है रिसर्च. अब चाहे आप जाके कहीं रिसर्चर बनेंगे, चाहे आप कहीं जाकर टीचर बनेंगे फ्यूचर में, वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये तो है कि आपने रिसर्च करना है, आपने नया ज्ञान. व्हाट इज रिसर्च? न्यू नॉलेज. आपने नया ज्ञान लेने की डायरेक्शन में कदम रखिए. तो जब आपको ये करना है, तब अगर आपका भाषा पर ही कोई कंट्रोल नहीं होगा, तो फिर वो नया ज्ञान आपके लिए ले पाना बड़ा ही मुश्किल होने वाला है. तो सबसे पहली तो बात यही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. और इसीलिए जब मैंने कहा कि मैं रन ऑन और सेंटेंस फ्रेगमेंट्स के बारे में बात करूंगी, तो मैं बात करनी शुरू कहाँ से करी? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, है ना, और सेंटेंस पैटर्न से बात करी. क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ग्रामर, पंक्चुएशन वो लाठियां हैं जिसके ऊपर की वाक्य चल सकते हैं. आप 4 शब्दों को एक साथ पुट अप कर देंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वाक्य बन गया उसमें से, तो वो ना ही हो पाता है. इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि आप, है ना, ये ध्यान में रखें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, टेंसेस. अभी एक और क्लास शायद आपकी कोई और टीचर ले रहे हैं क्लास ग्रामर पे, तो हो सकता है कि आपकी ग्रामर की भी क्लास लगे ना, टेंसेस की, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. किस तरह से रिसर्च को कौन से टेंस में आपको लिखना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है, पास्ट टेंस में लिखना है, नई नॉलेज जो आपकी फाइंडिंग है क्या वो फ्यूचर टेंस में लिखनी है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट. Additionally, use transitions and connectors to create flow and coherence. So ये ध्यान रखिए. मतलब कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो कुछ आपने लिखा है, प्लीज कीप इट, लिखते ही किसी को मत भेजिए, उसको 1 दिन रखिए, 2 दिन रखिए. कोई लोग तो कहते हैं कि 1 हफ्ते बाद आप उसको वापस से जाके, क्या आपको 1 हफ्ते में खुद का लिखा हुआ समझ में आ रहा है? आपको लगता है कि एक मनुष्य जो आपके सामने है, जिसको कि इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता है, क्या वो आपका पढ़ा हुआ समझ के उसको पूरा ज्ञान हो जाएगा? ये बातें बहुत ध्यान देने के योग्य है कि आपका
आपने जो कुछ लिखा है उसका सेंस निकल रहा है कि नहीं लिखा। मैम मैंने बहुत सिंपल लिखा, मैम मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा, मैम मैंने ना इतना फ्लावरी लैंग्वेज में लिखा। जैसे कि देखिए इसमें भी अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव। जैसे कि मैं अब कोर्ट्स ऑफ लॉ की बात करूंगी क्योंकि मैं लॉ यूनिवर्सिटी में हूँ। तो कोर्ट्स ऑफ लॉ कई लोग तो बहुत अच्छी फ्लावरी लैंग्वेज पे खुश हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो, जो कहना चाहते हो वो 2 शब्दों में कहो, इससे ज्यादा हमारे पास सुनने का शब्द समय नहीं है। अगर आप कोर्ट्स में जाइए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाइए, आपको पता लगेगा कि हर एक बेंच, बेंच मतलब जो जज बैठते हैं, सिंगल बेंच जज बेंच, डबल जज बेंच, आपको पता लगेगा कि एक दिन में हर बेंच के सामने लगभग 70 से 80 केस आते हैं और हर एक केस की बहुत लंबी लंबी फाइलें होती हैं, उसमें बहुत कुछ लिखा होता है, बहुत सारी एविडेंस होती है। मुझे ये पता नहीं है कि कोटा यूनिवर्सिटी में लॉ, एलएलबी, एलएलएम और पीएचडी है क्या, ये मुझे इतना ध्यान नहीं है। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई बार लोगों के पास बहुत कम समय होता है और वो सिर्फ टू द पॉइंट चाहते हैं। लेकिन मैडम टू द पॉइंट लिखेंगे तो मेरी थीसिस तो 20 पेज में खत्म हो जाएगी। आई हैव टू राइट एटलीस्ट 200 पेजेस। So for that there is the abstract of the thesis, which is important, which will convey what you want it to convey in the simplest possible manner, है ना। तो स्ट्रक्चर, लॉजिक, इन सब बातों पर विचार करिए instead of just writing for the sake of filling of pages. प्रूफ रीडिंग, अभी लोगों को लगता है प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, इसका क्या काम है, लेकिन आप देखिए कि न्यूज़पेपर का एडिटर सबसे बड़ा होता है। यहाँ तक कि जो पब्लिशिंग हाउसेस हैं, कोई भी बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन एडिटर की होती है, ना कि राइटर की। वाई? जब जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, सलमान रुश्दी, शशि थरूर, वो सब अपने एडिटर्स को थैंक यू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग इनकी राइटिंग को करेक्ट करते हैं, ऐसे फॉर्म में लाते हैं जहां पे कि उसे समझा जा सकता है, उसका करेक्ट सेंस निकाला जा सकता है। तो इसीलिए एडिटिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग का यही है ना कि अभी अपना नेक्स्ट क्लास एक्टिव वॉइस पर ही है, एक्टिव वॉइस वर्सेस पैसिव वॉइस, पैसिव कहाँ यूज करना है, एक्टिव कहाँ करना है, लगभग 5-7 मिनट के अंदर। तो अब आप ये देखिए कि प्रूफ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 7 दिन बाद जो कुछ आपने लिखा है आप उसको वापस से जाकर देखिए, क्या इसमें समझ आ रहा है। कभी कभी रात को जो लिख के सोते हैं ना, ऐसा लगता है अरे मैंने तो इतना बड़ा काम खत्म कर दिया क्योंकि मैंने ये लिख लिया है। बट जब आप सुबह उठ के उसे पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये मैंने क्या लिखा है। बहुत देख के लगता है कि इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, इनको ठीक करना है। बहुत सारा मिस्टेक्स है, एब्सोल्युटली राइट। सो दैट इज द पॉइंट कि हम अपनी ही चीज को एक क्रिटिकल गेज के साथ वापस से देखें, ये समझने के लिए कि क्योंकि हम क्या ये बैठ- सही है। यस, क्योंकि हम बेटर हो जाते हैं ना हाँ, तब yes. तक, एक कि अगले दिन मॉर्निंग में या फिर नाइट तक। नहीं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, एक आपका पैटर्न भी बन जाता है। लेकिन आप देखिए, आप लोगों को सबको वैसे तो इसके बारे में पता भी होगा कि इनफ्लिबनेट एक रिपोजिटरी है जो कि यूजीसी ऑपरेट करती है, अगर आपको याद हो तो। यस मैम, शोध गंगा। शोध गंगा, इनफ्लिबनेट, अगर आप उस पर गए हैं तो आपने ये देखा होगा कि जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हैं, बहुत सारी थीसिस वहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं, जामिया से, डीयू से, साउथ की यूनिवर्सिटी से, और उनके टाइटल भी है। क्योंकि आपके बहुत सारे सुपरवाइजर्स तो ये भी कहेंगे कि ये टाइटल क्या है तुम्हारा, ये टाइटल डजंट मेक सेंस। अभी टाइटल को किस तरह से प्रेजेंट करना है पीएचडी थीसिस के, तो ये भी एक बहुत जरूरी कार्य है कि आप ऐसे लेके सोचे कि पढ़िए शोध गंगा, इनफ्लिबनेट, आपके पीएचडी रिसर्च गाइड आपसे कहेंगे जर्नल्स पढ़ो, जर्नल्स का लिटरेचर रिव्यू निकालो, राइट। तो जर्नल्स तो क्या है आइडिया के लिए, लेकिन हाउ टू राइट अ पीएचडी थीसिस, उसमें क्या क्या होना चाहिए, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन,
आपके हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, और इन सबको आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये सब जानने के लिए आप उसी तरह का वर्क पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। अब हर कोई यही कहता है, आज तो कंप्यूटर का जमाना है, बट आप लोगों को सब लोग यही कहेंगे कि प्लीज ऑनलाइन है ना, आप एक डायरी रखिए, डायरी में हर एक चीज नोट करिए, बट पीपल टेंड टू डू इट ऑनलाइन नाउ। How can you be more clear and concise? Using active voice, choosing precise words rather than vague. एक और बहुत अच्छा रिसोर्स है जिसका नाम है thesaurus.com. एक मिनट, मैं लिखती हूँ। जब हम बच्चे थे तब तो थिसॉरस एक इतनी मोटी सी किताब थी, और ये डिक्शनरी से अलग होती है। डिक्शनरी में आप शब्द का क्या मतलब है ये देखने के लिए जाते हो, थिसॉरस में आप क्या देखने के लिए जाते हो कि इस प्रकार के और कौन से शब्द हैं। फॉर दैट यू विल गो टू अ थिसॉरस, राइट। तो इसीलिए जब मैं कह रही हूँ वेग वर्ड्स, जनरल वर्ड्स, आप ये ध्यान रखिए कि मेरा क्या डोमेन है, और जियोलॉजी है, जूलॉजी, पॉलिटिकल साइंस है, तो मेरी टर्मिनोलॉजी वैसी एग्जैक्ट होनी चाहिए, है ना। एक साथ एक क्लस्टर ऑफ वर्ड्स मत लगा लीजिए जिनका सबका एक ही मतलब हो। कीप एन एनालिटिकल क्रिटिकल माइंडसेट, which is most important. अगर आप चाहते हो कि आपकी पीएचडी थीसिस कंप्लीट हो जाए सक्सेसफुली, आपको डिग्री अवार्ड हो जाए, तो आपको ये सारी कोशिशें करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वेरी वेरी डिलिजेंटली। जस्टिस Excuse me, ma'am. यस प्लीज। सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक्चुअली मुझे एक डाउट था मेरा, जैसे मेरा मैं इंग्लिश लिटरेचर से हूँ एंड मेरा जो एरिया है वो ये ईएलटी पे है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग पे। तो जैसे मुझे जो सोर्सेज हैं वो केवल शोध गंगा से ही मिल पाएंगे या फिर अगर कोई वेबसाइट है इसके अलावा? Why not Shodhganga? So you can go, but simultaneously you can look for other papers on ELT on this. Have you heard of Google Scholar? Yes, ma'am. So you go to, this is for all domains, हर सब्जेक्ट हर स्ट्रीम के लिए एप्लीकेबल है, कि गूगल स्कॉलर में बहुत तरह के पेपर मिलेंगे आपको, बहुत प्रकार के पेपर्स मिलेंगे, ओरिजिनल पेपर मिलेंगे। गूगल स्कॉलर हो सकता है मैं अभी एक मिनट आपको खोल के दिखा दूं, अगर आपको गूगल स्कॉलर की ट्रेनिंग नहीं हुई है तो आपको ये भी पता लगेगा कि गूगल स्कॉलर में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि रेफरेंसिंग बहुत ही इजी हो जाती है गूगल स्कॉलर के थ्रू, और आपको गूगल स्कॉलर में ये भी फायदा है कि इट इज अ वेरी ऑथेंटिक सोर्स। हाँ मैम, ये इसकी क्लास हो चुकी है हमारे, गूगल स्कॉलर के बारे में इन्होंने बताया है प्रोफेसर्स ने भी, जो भी रिसेंटली क्लासेज हुई उसमें। बट मुझे क्या है एग्जैक्ट जो मेरा टॉपिक है ना, उस एरिया में कुछ मिल नहीं पा रहा था गूगल स्कॉलर पे। तो शोध गंगा में थोड़ा बहुत मटेरियल मिला, but there are so many databases. If you look Oxford, Cambridge, they have their books on the subject of English language teaching. So you go to the website of Oxford, Cambridge, and publication, not university, not Oxford, Cambridge University, but Oxford publication and Cambridge, Harvard publications. There you search through the book list. Okay. Then there are so many journals. You go to the journals homepage. Sage,
uh, journals have got a huge Yes. collection. Thank you, ma'am. Sage, right? So you'll get all of that. So yes. So now, hmm, as I said before, run-ons, sentence fragments. One of the best way to avoid is to look critically at what you have written, re-examine it again, and then clearly edit it going forward. Right? So this is supposed to be the end of our first topic, which is sentence fragments and run-ons. Now, just give me a second so that I can uh, change to the other PPT. Yes, ma'am. Please. मैम वो ग्रामरली का जो फ्री वर्जन है वो कौन सा वाला है? If you go on the Grammarly site, you'll find a trial version. You can use that. मैम वो तो केवल 3 डे ट्रायल बता रहा है. नहीं, ऐसा नहीं है. बहुत सारे ना ग्रामरली बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ फ्री भी आता है. अच्छा, ठीक है मैम. क्लास अभी भी चल रही है, बंद हो गई? चल रही है.
कहीं मैम से मिस्टेकनली साइन आउट हो गई है. I think ma'am is not out there. Where is Divya? Divya ma'am? Yes, please. Is the slide visible now? Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. Visible. Yes, ma'am. Yes. Okay, thank you. So now we start with our next topic. So the expectation from the research scholars is this, that they are going to use active voice in the writing of their research work and not passive voice. So what is this active voice and what is this passive voice, and how to differentiate between the two? So that is an important thing. I would like to start by telling you people that in our domain, that is in the domain of law, passive voice is largely used. The man was murdered, the bank was robbed, the war started, right? Third form. Rather than uh, active voice. So that is for a very strategic reason as to why passive is being used and not active voice. We'll first understand the characteristics of both in order to help you people forward. Right? Now, we use active voice very generally. The girl kicked the ball, the boy slept in the cot, the student walked to school, the student appeared in the exam, the scholar wrote the thesis. All of these are examples of active voice. Something is done by an agent. Someone, the agent, doing something, the verb, to someone or something is the recipient. So actor, verb, recipient is the format of active voice. Another example, the rain soaked the pitch. The rain collapsed the tent, all of that. The storm collapsed the tent. All of these are examples of active voice, where an actor is doing an action to an object, a supposed object is the purpose. Now, in passive voice, this sequencing is changed. How is it changed? The girl kicked the ball becomes the ball was kicked by the girl. So the recipient has got something done to him or her by an agent, by the actor. So that agent recipient relationship undergoes a change. What was an actor becomes a passive doer, and what was the recipient suddenly becomes all important. So the girl kicked the ball becomes the ball was kicked by the girl. So what is the difference between the two sentences? The girl kicked the ball, very simple. Subject, verb, object. And the ball was kicked by the girl. Object was kicked by the subject. So by and change in the form of the verb is what is, and the intertwining between or the interchange between the two positions is what is the pertinent action over here. The ball was kicked by the girl. So look at it carefully. There are many types of active sentences. They get transferred into many types of passive sentences. What are we looking at?
We are only looking at the basic rules of this particular change going forward. So the positions are interchanged, the verb undergoes a change, and there comes a by. This is the basic crux of what is happening. In the same way, the rain soaked the pitch becomes the pitch was soaked by the rain. These are two examples of simple past tense usage, right? In conversion from active to passive. Okay. Now, there are a few examples, 5 of them to be very precise. I want you people to identify what is the first one an example of. Active or passive? Ma'am, passive voice. First one is passive. Passive. And what will be the active of this, please? Active. The DJ played the music. But the DJ plays the music. Okay, the DJ played the music. Is playing the music. That tense wala thing. Okay. The second one, please. Somebody. It is also passive. It is also passive voice. So now what would be the active, ma'am? The cloud hidden the sun. No. The clouds hid the sun. Hide. Hid. So the hidden. This points to a very important thing, that verbs have got 4 forms. Simple present, simple past, past participle, present participle. Present participle form will be hiding. Right? So all verbs, if you go type on Google 4 forms of the verb, they will tell you there are regular verbs, there are irregular verbs. Each verb has got 4 forms. So the sun was hidden by the clouds. The clouds hid the sun, right? Would be the active. Now third one, please. Active voice, ma'am. Active voice. Active. Now turn it into passive. The pitch was streamed by the delighted fans. And what about onto? There is an onto. Yes. The pitch was streamed onto by the delighted fans. We can't, ignore onto over here. Fourth one, please. Active voice. Active. Okay. And please turn it into passive. The letter was written. The letter. Yes. We'll start with the letter. The letter was written by Mary to the head teacher. To the headmaster. Was written to the headmaster by Mary. Hmm. The letter was written to the headmaster by Mary. Now, if you look at this sentence, Abhi, we just studied sentence patterns. Direct object, indirect object. Mary wrote to the head teacher. Now, the head teacher was written to by Mary. Mary wrote the letter. The letter was written by Mary. So what is the thing about this special Ma'am, here sentence? head teacher is a The letter, indirect ma'am, object, right? letter is the object. The letter is the direct object or the indirect Yes, object? direct object. Okay. The letter is the direct object and indirect object is Mary wrote the letter to the head teacher. So now you convert it because you realize that the direct object will change in the passive voice. Danny was praised by the head. No. We are still on the fourth one. Okay. The letter was written to the headmaster by Mary.
The letter was written to the headmaster by Mary, because here it is important to determine what is the direct, what is the indirect object. And so this particular sentence, the fourth one, can be converted in two ways. Yes, ma'am. It can start with the head teacher. The head teacher Had a letter written to by Head Mary. teacher got a letter. Mary. Head teacher received or got a letter by Mary. Or the letter to the head teacher was written by Mary. So both ways conversion to passive voice is possible. Now the fifth one is active or passive? Active. Passive. Huh? Passive, ma'am. Passive. How? Ma'am, passive voice. By the teacher. I say by Passive is one of the strongest indicators of the presence of passive voice. The head teacher praised Danny. Praised Danny. Yes, ma'am. The head teacher praised Danny. It's the simple way to put it. Right on. Head teacher praised Danny. Okay. So sometimes in passive sentences, and here we are coming to the most important thing. As for you people as researcher and the essential requirement of using active voice. So as researcher, one of the most important things you have to see is passive voice in terms of understanding and clarity is always less than active. So the pitch was soaked, by the rain is left out. The rain soaked the pitch, okay, by rain came, soaked the pitch. Everything is clear. Or no. Subject, verb, object, no problem. The pitch was soaked. The object was soaked, by whom is left out in active voice. And that is a very, very important thing with regard to active passive voice differentiation, right? That the doer of the action is eclipsed. That is why when I said that in criminal law in our country, you'll notice that all newspaper reporting, everything comes out in passive voice because they want to encourage hiding the actor. The actor gets eclipsed, disappears, and that is something which suits a lot of, I'd say, stakeholders. Okay. Now, look at this sentence. One has got an agent, another has not got an agent. I see your car was damaged last night. Take care. Last night, your car was incurred damage by my friend or whatever. I see your car was damaged last night by my friend. I see your car was damaged last night. So the agent is left out. Now, the one very big advantage is you want to leave out the agent. There are certain scenarios where you want that agent to be left out. And so it is a happy situation. Everyone is happy with the situation where the agent is left out in certain scenarios. Now, look at this. This is a story in passive voice. Usually stories are they in active or passive voice. Once upon a time, there was a boy, and then so on. But look at this one. In the middle of the night, Sebastian was woken by the most hideous scream. If we turn it into active voice, a hideous scream was uttered by Sebastian in the middle of the night. Right? So, the way you put it, sometimes the intensity, sometimes the excitement, sometimes the suspense comes from very skillful usage of passive voice. But what we are primarily concerned about in this particular class is with regard to academic writing. And for academic writing, we have to worry. So now, look at this. Subjects are the ones performing the action. The researcher, the scholar conducted a preliminary survey and administered a questionnaire to 1,000 participants. A questionnaire was
implemented, or a questionnaire was run through 100 participants by the researcher, right? So you notice that sometimes there is हिंदी माध्यम के शोधार्थियों के लिए भी, यस, एक्टिव पैसिव वॉइस का कोई मुझे हिंदी बताएगा तो मैं इसे हिंदी कर दूंगी, बट मुझे एक्टिव पैसिव का हिंदी सिर्फ इन टर्म्स का बता दीजिए तो मैं वाच्य बोलते हैं मैम, जी वाच्य बोलते हैं हिंदी में। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। हाँ, रिपीट एक बार दीवान सिंह जी। कर्तृवाच्य एवं कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस का क्या था? कर्तृवाच्य। नहीं, आप लिखेंगे क्या? एक मिनट में जी। कर्ता के आधार पर क्रिया कर्तृवाच्य, कर्म के आधार पर क्रिया कर्मवाच्य और भाव के आधार पर क्रिया भाववाच्य। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। सब्जेक्ट ये सक्रिय वाक्य हो, निष्क्रिय वाक्य है मैम? सक्रिय निष्क्रिय, हाँ ऐसे बोल दीजिए भाषा में, बाकी कृतवाच्य कर्मवाच्य सही है। हाँ, मैं एक्चुअली सक्रिय निष्क्रिय मैंने नहीं सुना, हिंदी तो मैंने भी पढ़ी थी बचपन में, लेकिन भूल गई अब तो लगभग। सही तो कृतवाच्य और कर्मवाच्य ही, बस ये समझाने के लिए बोल सकते हैं अपन। कर्तृवाच्य होता है मैडम, कर्तृवाच्य। यस मैम, सक्रिय होता है, सक्रिय वाक्य। हाँ, नहीं वो दिखाइए गिरिराज जी। प्रिंट हो गया है ना मैडम? वाक्य क्रिया 3 प्रकार के होते हैं मैडम, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य और कर्मवाच्य ये बुद्ध नहीं होंगे। भाव कहाँ से आ गया इसमें? रखा हुआ है। अच्छा, अपन क्या गूगल से पूछूं? गूगल हर एक चीज का जवाब देगा। मैम, कृतवाच्य यानी जिसमें कर्म कर्ता प्रधान होता है। हाँ। और कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान होता है, ऑब्जेक्ट। हिंदी में करने की जरूरत क्या है यार, हिंदी में क्यों चाहिए इसको? अच्छा, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट इट। मैं 1 मिनट में गूगल से 1 मिनट। सब्जेक्ट्स का कोरिलेशन तो होता ही है हिंदी और इंग्लिश में, क्या है? नहीं देखिए, क्रिया, मैं आपको पता है कि 1 मिनट में बताती हूँ इन हिंदी। हाँ, सक्रिय निष्क्रिय आवाज, अरे बाप रे, ये तो हिंदी ट्रांसलेशन तो और भी गजब है। मैम इसमें भी कृत्यवाच्य और कर्मवाच्य ही आ रहा है, वो जो कह रहे थे ना गिरिराज, वो सही कह रहे थे। यस एब्सोल्युटली। तो एक्टिव बोलेंगे कृतवाच्य और पैसिव बोलेंगे कर्मवाच्य। यस मैम। ओके। कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, ठीक है। हाँ जी, तो अब एक बार सिर्फ हिंदी वालों के लिए कृत्यवाच्य और कर्मवाच्य। कृत्यवाच्य में जैसा कि इस शब्द से ही पता लग गया रहा है, कृत्यवाच्य में जो करता है वो आगे है और जो वो कर्म कर रहा है वो पीछे है। कर्मवाच्य में जो कि एक्शन हुआ है वो आगे है और कर्ता पीछे छूट जाता है। तो इसके कन्वर्जन की कुछ बेसिक रूल्स होते हैं कृत्यवाच्य और कर्मवाच्य के, और वो रूल्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जब पीएचडी स्कॉलर्स के लिए, पीएचडी डिसर्टेशन राइटर्स और थीसिस राइटर्स के लिए हमेशा एकेडमिक राइटिंग में ये कहा जाता है कि आप हमेशा कृत्यवाच्य में लिखिए, ये बताइए कि मैंने क्या किया है, ना कि कर्मवाच्य में कि ये हुआ वो हुआ। जैसा कि हमने कहा, लॉ में, पुलिस रिपोर्टिंग में, एफआईआर होती है पुलिस की, उसमें उस शब्द में हमेशा कर्मवाच्य जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। न्यूज़पेपर में भी आप देखेंगे, बैंक में डकैती, ब्रिज, पुल गिर गया, बट पुल गिरा, 200 लोगों की जान, कैसे गिरा, म्यूट कर दीजिए आपका। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो
ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो कृत्यवाच्य और कर्मवाच्य में ये अंतर है। अब आप इसे देखिए 3 एग्जाम्पल्स के साथ। गॉड लव्स ऑल मैन, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, डॉग ईट्स बोन्स। ठीक है, जब हम इसको कर्मवाच्य में बदलते हैं तो ऑल मैन आर लव्ड, सबसे पहले तो जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट टेंस में चला ही जाता है जब हम कर्मवाच्य में उसको परिवर्तित करते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स, नेस्ट्स आर बिल्ड, एक हैबिचुअल एक्टिविटी, कुछ हो गया लव, लेकिन कुछ जो हमेशा चलता रहता है, तो नेस्ट्स आर बिल्ट बाय बर्ड्स। डॉग ईट्स बोन्स, जबकि ये वाला तीनों इसी प्रकार के वाक्य है जहां पर की जो हैबिचुअल एक्शन है उसके ऊपर फोकस है। तो कर्मवाच्य में बदलने पर बोन्स आर ईटन बाय डॉग्स। 3 चीजें हो रही है, टेंस बदल रहा है, हाँ, जो करता है वो छुप रहा है, एंड फोकस एक्शन पर बढ़ रहा है। ये 3 चीजें इस सारे ट्रांसफॉर्मेशन में हो रही है। एकेडमिक राइटिंग के लिए हमेशा ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो है ना कर्मवाच्य में नहीं, कृत्यवाच्य में होना चाहिए, कर्मवाच्य में नहीं होना चाहिए। आप ये देखेंगे कि, जबकि मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि इसे तो प्रैक्टिस करने पर ही पता पड़ पाता है कि हेल्पिंग वर्ब्स जब हम ये बदलते हैं कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य पर, तो जो वर्ब होता है वो किस तरह से बदलता है। कई बार वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब्स जो कि है ना उसको सपोर्ट करने के लिए, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं? इज, आर, एम, was, were, have, had, be, been, been। अगर आप यहाँ देखेंगे was, were, would, has, had, तो जो कुछ भी है, he washed his clothes had been washed। हाँ, he has been washing his clothes had been being washed by him। So क्या हो रहा है कि जब अपना टेंस बदल रहा है तो अपन को ऑक्सिलरी वर्ब्स की सपोर्ट लेने की कोशिश करनी पड़ रही है इन ऑर्डर टू क्लियरली मेक अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ये देखिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण चेंज होता है सर्वनाम में। I becomes me। I love mangoes। Mangoes are loved by me। We eat dinner। Dinner is eaten by us। You finish the task। Yes, please। मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे ये जो पैसिव वॉइस है, अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो अब एक्टिव बनाने के लिए इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे ना? हाँ, वो चेंज करेंगे। ये तो आपको वो देखिए कि टेंस तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन क्योंकि एक प्रिलिमिनरी क्लास थी और प्रिलिमिनरी क्लास में इसको पूरा नहीं पढ़ाया जा सकता है, इसकी रूल्स, वो तो एक एक रूल पढ़ाएं, 2-2 रूल पढ़ाएं एक दिन में, फिर उनकी प्रैक्टिस कराई जाए। यस मैम, वो एक एग्जांपल था, उसमें वो डाउट था इसलिए मैंने पूछा। जी जी जी। हाँ, you have to finish this task urgently today। This task has to be finished urgently by you today। he is a hero और या he is the hero of the hour। नहीं, यहाँ पे ये ही नहीं आएगा। Anybody will give me an example of this he and him, the fourth one in active and passive? रमेश taught English to him। नहीं नहीं, ये तो पैसिव हो गया, इसका एक्टिव बताओ। He is cooking food। The food is being cooked by him। he is cooking food। Lovely example। Yes, simultaneously the same person will give a she and her ka example। Although the same example is applicable, she is cooking food, the food is being cooked by her, but give another example, please। Ma'am, please give me a minute। Question
A question was being asked by her. हाँ, she was asking a question was being asked. Okay, now it, and this it is a specialized usage. We've got a slide later on to talk about it. It is raining heavily. Can I convert it into passive voice? होना तो नहीं चाहिए, हो नहीं पाएंगे. Why not, दीवान जी? मैडम इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया ना. Yes, very nice. क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इट में कहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, ये सोचे. अब जैसे कि मैं एक एक्टिव बनाती हूँ, इट इज मैंडेटरी टू वेयर यूनिफॉर्म. वेयरिंग यूनिफॉर्म इज मैंडेटरी टू इट, तो बनेगा ही नहीं. बाय इट भी नहीं बनेगा. So if you really think about it, it doesn't fit. जो कि अभी अपन ने हिंदी में क्या कहा? I think we are omitting कृत्यवाची. हाँ बेटा, बाय को omit कर देंगे ना, फिर इसका कोई यूज नहीं. हाँ. Okay. They are going for a picnic. They are preparing for a picnic. Preparation for a picnic is being made by them in passive voice. It का बोले? It may rain. It may rain. हाँ, but then passive क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है ना? Yes, ma'am. Okay. Now the rules for changing active to passive. Identify the subject, verb, object. For example, that is why subject, verb, object is most important. If it is subject, verb, complement, she looks charming, I can't convert it into passive voice. So object is most important. Please remember this as the basic rule. Right? So we can't only adverbial. She arrived early. I can't convert it into passive. Early she arrived by or what. So the pattern of the sentence should be SVO. It can be indirect object, direct object, like we saw in the previous example, but it has to be in SVO. That is important. SVO basic should be there. It can be SVOC, it can be adverbial SVO, but SVO cannot be, diluted. Please remember this. अब क्या करना है? जो कि ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट पे करना है. Put a suitable verb, form of verb, auxiliary verb. तो अब जो क्रिया है, क्रिया का जो रूप है वो तो पैसिव वॉइस में जाके बदलना ही है, और हेल्पिंग वर्ब्स भी साथ में लगने हैं. हमने हेल्पिंग वर्ब्स अभी आइडेंटिफाई किए थे. इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैड, बी, बीन. वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, मैंने आपसे कहा कि वर्ब्स के 4 फॉर्म होते हैं. सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है क्योंकि उसमें आईएनजी होता है. बट पास्ट पार्टिसिपल में कभी टी हो सकता है, कभी ईडी हो सकता है, कभी सिर्फ डी हो सकता है. प्रेपोजिशन लगाइए बाय. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान एक दूसरे से बदल. तो क्या हो रहा है कि बेसिकली जब हम एक कृत्यवाच्य को कर्मवाच्य में बदल रहे हैं, तब हम कर्ता और कर्म का स्थान बदल रहे हैं, अपन वर्ब बदल रहे हैं, हम ऑक्सिलरी वर्ब लेकर आ रहे हैं, लेकिन और वर्ब का भी फॉर्म बदल रहे हैं, बाय लगा रहे हैं. तो ये बेसिक चीजें हम कर रहे हैं. इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस.
जब हम एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कंप्लीटली बदल। अब imperative sentence. Imperative sentence. Ma'am, your voice is not coming clear. अच्छा, just a sec, हाँ, just a sec. कटी आ रही है, breathing. Everybody, it is problematic. No, no, ma'am, you are audible. क्लियर आ रही मैम वॉइस? इनको हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो। हाँ, आप ओके मैम, वापस से लॉग इन करके लॉग आउट कर लीजिए, है ना? Just a second, Shul. Imperative sentence, जो कि कोई कमांड दे रहा है, कोई रिक्वेस्ट दे रहा है। कोई भी मुझे हिंदी में बताएगा imperative sentence का मतलब का वर्ड, या मैं देखूं गूगल पर imperative sentence? आदेशात्मक। बेटे क्या? मैम आदेशात्मक। आदेशात्मक, ओ यस, आदेशात्मक वाक्य। तो अब आदेशात्मक वाक्य, जबकि आदेश नहीं हो सकते, हमेशा एक रिक्वेस्ट भी हो सकते हैं। हेल्प मी, बाय बाय, बाय बाय। ओए दुष्ट, सीधी पकड़ सीधी। Madam Sudesh, Meena, please, if you'll try muting yourself. Sorry. So that is the thing with, it's better to be at the university sometimes, academic, this thing gets compromised otherwise. Okay, so आदेशात्मक वाक्य, कभी कभी वो कोई जरूरी नहीं है कि आदेश ही हो, कभी कभी वो रिक्वेस्ट भी हो सकते हैं। हेल्प मी सिंग अ सॉन्ग, लेकिन डोंट ईट अ फ्रूट, ओपन द डोर, है ना? कमांड, राइट? नाउ जब हम इनको बदलते हैं पैसिव वॉइस में, तब हमें क्या करना है? लेट, और जो अपन ने प्रोनाउन को बदला था, हेल्प मी, लेट मी बी हेल्प, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, डोंट ईट द फ्रूट, लेट दिस फ्रूट बी ईटन, डोंट ईट दिस फ्रूट, लेट नॉट दिस फ्रूट बी ईटन। आप ये देखेंगे, लेट नॉट दिस फ्रूट बी ईटन। आपको पता है कि रिलीजियस सर्मन्स में जहाँ पे कि धर्म के लोग बोलते हैं, तो जब धर्म के लोग आपको मोरालिटी, एथिक्स सिखाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि कर्मवाच्य पर, क्योंकि वो यही चाहते हैं ना कि आप अपने कर्मों को इम्प्रूव करें। तो इस तरह के वाक्य का यूजेज बहुत ज्यादा रिलीजन में होता है। हाँ, इंटेरोगेटिव sentences. Just a second, class. I'll have to mute myself. Yes, please. Now, interrogative sentences. क्या कहेंगे इसे? प्रश्नात्मक? नहीं? प्रश्नवाचक। 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 ओके। नाउ ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम रिसर्च क्वेश्चंस बनाएंगे, तो रिसर्च क्वेश्चंस क्या हमको एक्टिव फॉर्म में लिखने हैं या पैसिव? मोस्ट प्रोबेबली आपकी रिसर्च क्वेश्चंस जो है ना, वो कर्मवाच्य में ही जाएंगे, क्योंकि रिसर्चर नहीं, प्रॉब्लम पर फोकस होता है। रिसर्च प्रॉब्लम
रिसर्च क्वेश्चन ये सब पैसिव वॉइस में लिखे जाएंगे। शायद इसीलिए आप लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है एक्टिव वॉइस कहाँ पर, पैसिव वॉइस कहाँ पर यूज होगी। तो प्रश्नवाच्य, आर यू राइटिंग अ लेटर? इज अ लेटर बीइंग रिटन? बी, बीन, बीइंग, helping verbs, auxiliary verbs. Is she beating the child? Is the child beaten by her? Again, being beaten can also be used. Will you accept the position? Will the position be accepted by you? So this प्रश्नवाच्य का भी बहुत जरूरी है। आप फिर भी ये देखिए, आर यू राइटिंग अ लेटर, इसमें यू सब्जेक्ट है, राइटिंग वर्ब है, लेटर ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ट्रिनिटी है, डूअर, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये अगर होगा तब ही कुछ बन पाएगा। खाली आप वो देखिए कि अपने जो पिछले अपन ने किए उसमें भले ही आपको सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, हेल्प मी, ओपन द डोर, लेकिन ये फिर भी अपन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर पा रहे थे, लेकिन बाकी कन्वर्ट नहीं कर। हाँ, ये देखिए, ये पहले अपन ने यही बात करी थी ना कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, शी ब्रॉट मी अ कप ऑफ कॉफी, तो उनको दो प्रकार से हम कर्मवाचक और या पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई वॉज ब्रॉट अ कप ऑफ कॉफी बाय हर, अ कप ऑफ कॉफी वॉज ब्रॉट टू मी बाय हर। सर अब क्या हो रहा है कि जब ये एक्टिव से पैसिव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले करते हैं, तो उनको दो प्रकार से ये परिवर्तन प्रत्यवाच्य से कर्मवाच्य करता है। द टीचर टीचेस ग्रामर, तो सिंपल है, ग्रामर इज टॉट बाय द टीचर। द टीचर टीचेस अस ग्रामर, वी आर टॉट ग्रामर बाय द टीचर, ग्रामर इज टॉट टू अस। तो यहाँ पे टू का एडिशन है, जो कि एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो कि आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। Yes. Now, this is another type where gerunds are being employed in order to convert from active voice to passive voice. तो gerund क्या चीज होती है? सबसे पहले तो ये बताएंगे मुझे। Yes, ma'am. I love swimming. हाँ, I love swimming. ठीक है। ING. हाँ, so then एक्टिव और पैसिव का यूजेज कैसे होगा? बेसिकली अगर ग्रामर की डेफिनेशन देखी जाए तो कि a gerund is a verb in ing form that acts like the noun of a sentence, right? So basically gerund is a verb, it is in the ing form, but what is the trick? It is being made to act like a noun. They made him king. Is the object king? What is the object in the first one? They made him king. Him is object. Huh. So him is the object. He was made king by them. So look at this carefully. I want to shoot the tiger. I want the tiger to be shot. I remember, I want, ये देखिए, ये infinitive और gerund में क्या है important चीज? I want to shoot the tiger. I want the tiger to be shot. तो यहाँ पे क्या है कि कर्ता और कर्म को इंटरचेंज किया है, लेकिन शुरू में I want को वैसा का वैसा रखा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत कम प्रकार के सेंटेंसेस में इस तरह का कन्वर्शन आता है,
कि आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि अच्छा, नहीं तो आप सबन को तो बहुत सिंपल रूल है कि टेंस चेंज करो, बाय लगाओ और दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी इसके बहुत प्रकार के स्वरूप होते हैं, इन्फिनिटिव, जेरंड, कॉम्प्लीमेंट, ये वो स्वरूप हैं जो कि 100 वाक्यों में से एक में निकल आता है। I remember my father taking me to the theater. My father taking me to the theater. I remember वैसा ही रहेगा, being taken to the theater. Being auxiliary verb लग गया, taking का taken हो गया, to the theater by my friend. तो अब क्या हो रहा है कि ये छोटे छोटे चेंजेस, हर एक वाक्य, हर एक मनुष्य एक समान नहीं होता है, उसी प्रकार हर एक वाक्य को अपन एक सेट पैटर्न में नहीं लगा सकते। इंग्लिश ग्रामर चाहे हिंदी ग्रामर, इस बात पर मैं आ जाऊं कि इंग्लिश और हिंदी का अंतर, जो कि आप, ये बहुत सही समय है कि आपसे लोगों से 2 मिनट इस सारे बारे में बात कर दी जाए। हिंदी, संस्कृत ऐसी भाषाएं हैं जहां पर जो बोला जाता है और जो लिखा जाता है वो 100% परफेक्ट। संस्कृत में तो 100% परफेक्ट है, हिंदी में शायद 90 to 95% परफेक्ट होगा। जो वाच्य है और जो वाच्य है और जो लेखनी है, हिंदी, जब हम इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, ग्राफीम एंड फोनीम। इंग्लिश वालों को पता होगा, ग्राफीम मतलब स्पेलिंग और फोनीम मतलब साउंड। और जैसा कि मैंने कहा हिंदी में कि जिस तरह से किसी शब्द को लिखा जाता है और जिस तरह से उसका वाच्य होता है, लेखनी और वाच्य, तो जो इंग्लिश है ना, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लेखनी और वाच्य की। जहां पर जो अपन बोल रहे हैं, जैसे कि THEIR, THERE, HERE, HEAR, देर, ऐसे हजारों शब्द हैं जिनका की वाच्य समान है लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग है। उसी प्रकार ऐसे हजारों शब्द हैं जिनका सिर्फ एक मतलब नहीं, जिनके बहुत सारे मतलब हैं। तो ये भी एक ध्यान देने योग्य बात है कि हमेशा ये जरूरी नहीं है कि एक किसी शब्द का यही मतलब हो। अंग्रेजी में तो ये खास तौर से ध्यान देने योग्य बात है कि आपके शब्द का मतलब ही बहुत सारा हो सकता है और शायद आप उसको ढंग से क्लियरली लिख ही नहीं पाते। तो वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ, सबसे बड़ा थंब रूल क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। उसके बिना नहीं सेंटेंस कन्वर्शन हो सकता। उसके बाद ऐसे शब्द होते हैं जो कि कोई कमांड दे रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो जो कि ऐसे वाक्य होते हैं जो कि एक प्रश्न उठा रहे हैं, वो भी हमने पढ़ा, इंटेरोगेटिव, जो रिक्वेस्ट या कमांड कर रहे हैं वो भी किया। और अब हम इस पर हैं कॉम्प्लीमेंट, इन्फिनिटिव, जेरंड, और ये सब क्या है, ये है ना और भी ज्यादा एक्सेप्शन है। तो अब आप कहेंगे कि मैडम लिखने में बहुत मुश्किल है, एक रूल तो फिर भी याद रख लेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन उसके बाद आपने उतने सारे तरह के रूल बताए, उसके बाद आपको ना हेल्पिंग वर्ब भी लगाने हैं। देखिए, ये सारी चीजें सिर्फ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के ही थ्रू आ सकती है। जब हम कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य जाते हैं और जब हम वापस कर्मवाच्य से कृत्यवाच्य जाते हैं, तो जब हम वापस रिवर्स आते हैं, पैसिव टू एक्टिव, कर्मवाच्य से कृत्यवाच्य, तो हमको वो सारे के सारे रूल्स वापस रिवर्स ऑर्डर में लगाने पड़ते है ना। ये ध्यान रखें। और वही है कि पास्ट पार्टिसिपल, ये वो तो सारे रूल्स हैं ही। और मुझे पता है कि एक बार में सारे रूल्स, वो भी विदाउट प्रैक्टिस, थोड़ा सा मुश्किल लगता है ना। अब हम ये थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं जी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई भी चीज
समझने की जगह, उसकी कॉन्सेप्ट समझने की जगह कई बार अगर हम उसे एक्चुअली करके देखें, साइंस वाले ये चीज बहुत अच्छे से रिकग्नाइज करेंगे कि वो कॉन्सेप्ट क्लासरूम में समझ नहीं आता है, लेकिन अगर लेबोरेटरी में जाके हम उस एक्सपेरिमेंट को रन कर लेते हैं तो वो चीज कई बार ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाती है। वैसे ही अगर हम उल्टा कन्वर्शन कर रहे हैं, पैसिव टू एक्टिव, द थीफ वाज फाइनली अरेस्टेड, तो बाय द पुलिस मिसिंग है, क्योंकि पैसिव वॉइस में किसने किया ये तो बताते ही नहीं है। द पुलिस फाइनली अरेस्टेड द थीफ। वी वर टॉट ग्रामर बाय द टीचर. The teacher taught us grammar. My purse has been stolen by a thief, by somebody, by nobody. My purse has been stolen. Somebody has stolen my purse. The thief has stolen my purse. The patients were looked after by the doctor, but the doctor is hidden. The doctor looked after the patients. My pocket has been picked. अब यहाँ पे someone लगाया है, somebody has picked my pocket is also equally correct. Our army has been defeated by the enemy. Army has been defeated by whom? By the enemy, right? So the enemy has defeated our army. I shall be obliged to go. I shall be obliged to go by the circumstances, by the landlord, right? The landlord or circumstances will oblige me to go. तो ये दोनों तरह के कन्वर्जन्स, लेकिन हम आपको बता दें कि जहां पे आपका the thumb rule is this, that just a second. Yes, please. The thumb rule is this, that wherever in conversion from passive to active, the actor is hidden. आपको एक एक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पर the police, the teacher, somebody, the doctor, the enemy, circumstances, ये सारे एडिशन करने पड़ सकते हैं और करने पड़ भी सकते. स्टूडेंट मैम, ये डॉक्टर को क्यों ओमिट करा है उसमें पैसिव वॉइस में? पैसिव वॉइस था ना. पैसिव में तो हमेशा ये एक्टर इज द पेशेंट्स वर वेल लुक्ड आफ्टर बाय द नर्स, बाय द डॉक्टर, बाय द हॉस्पिटल, बाय द अथॉरिटीज. पता नहीं ना, बट आप एक्टिव में कन्वर्ट करोगे तो यू हैव टू फिगर आउट बाय whom were they looked after. पैसिव वॉइस में क्या होता है मैम, कितनी बार किसने किया वो तो छुपा देते हैं, कर्ता को छुपा देते हैं. कर्म वाच्य में खाली कर्म पे ध्यान देते हैं, कर्ता को छुपाते हैं. है ना? Okay. Now, okay. Look at these two sentences. Last year, the Green India scheme was announced by the government. Rare plants are found in the Silent Valley. In the first sentence, the doer agent is explicitly mentioned. That is, the government is the doer. But in the second sentence, it is not. Rare plants are found in Silent Valley. By whom? By horticulturists. By whom? Because either the agent or the doer of the action is too obvious, unknown, whatever. The emphasis is on the action or the thing described. The doer is whole. So this is an impersonal passive. Right? Last year, the Green India scheme was announced by the government. ठीक है. So there are so many of these impersonal passives. जैसा कि अभी आपने पूछा प्रश्न कि मैम डॉक्टर को क्यों नहीं मेंशन किया है. The patients were looked after. The injured were healed. By whom? So passives are sometimes hidden. So that is called an impersonal passive. They say might is right. It is said might is right. One finds mosquitoes everywhere. Mosquitoes are found everywhere. He gave us a drink. A drink was given to us. So there is this concept of impersonal passive where the doer of the action is not clearly
highlighted. So sometimes there is a strange construction which comes like this. It is said that, right, rare plants are found in Silent Valley. Rare plants, subject, found, verb, Silent Valley, object. Right? Now it is difficult to convert such a sentence into passive. So what do we say? It is said that rare plants are found in Silent Valley. So that is taken as a passive form. So as I said, no, one glove fits all. One system which is applicable for all is not the thing when it comes to conversion to passive voice. There is a ground rule. There are certain rules which are there, but there are 100 small sub rules which tend to, change the original sense of, or the original rule is, for example, देखिए आपको बताया कि जैसे लॉ से एक एग्जांपल देती हूँ. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर इतनी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स है. स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर में म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में पंचायत है. हर जगह का छोटा छोटा रूल है, हर जगह की छोटे छोटे रेगुलेशंस हैं, एक्ट्स है, कहीं कचरा के संबंध में, कहीं पॉल्यूशन के संबंध में, कहीं रोड डिसिप्लिन के संबंध में, सभी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. इन सब का तात्पर्य क्या है कि अंडर वन अम्ब्रेला ऑल ऑफ दीज आर ऑपरेशनल. उसी प्रकार एक्टिव पैसिव का फर्स्ट रूल जो है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ऑब्जेक्ट विल चेंज, वर्ब विल चेंज, बाय विल लगेगा, सब्जेक्ट विल कम एट द एंड. दैट इज लाइक द फर्स्ट ग्राउंड रूल. उस ग्राउंड रूल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग तरह के एक्सेप्शन, इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस को लेके, इंपेरेटिव को लेके, जेरेंड को लेके, इनके अंदर ये छोटे 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 रूल्स बहुत सारे चल रहे हैं. लेकिन कोई भी पढ़ने वाले को कि मैम हमारा पीएचडी का सब्जेक्ट और इस लेवल पे पीएचडी के टाइम पे हम ये सारी चीजें कैसे सोचें. तो बस यही आप लोगों के लिए एडवाइस है कि आप इस प्रकार से सोचिए कि मुझे, है ना, ग्राउंड रूल को याद रखना है. रन ऑन सेंटेंसेस में भी, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स में भी, पैसिव और एक्टिव वॉइस में भी ग्राउंड रूल को याद रखना है और उसको याद रखते हुए चलते रहना है इन द एंटायर डोमेन ऑफ एकेडमिक राइटिंग. उसके बाद जो छोटे छोटे एक्सेप्शंस हैं, कभी आपको ग्रामरली, कभी कोई स्पेल चेक, कभी कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बहुत सारे नए वर्जन्स में भी कोई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको सेंटेंस एरर्स करेक्ट कराते हैं. कोई स्पेलिंग एरर करेक्ट कराते हैं, कोई सेंटेंस एरर करेक्ट कराते हैं. तो वो सब चीजें रखिए. खासतौर से ये बात ध्यान रखिए कि जो कुछ मैंने लिखा है एक बारगी में, वो सब फुल एंड फाइनल नहीं है. मुझे उसे वापस से देखने की जरूरत है और मुझे वापस से उस पर सोचने की जरूरत है कि मैं इसे ना करूं. और एकेडमिक राइटिंग लिखने से पहले, देखिए लिखना बड़ा मुश्किल है. लिखने से पहले आप जाइए, कुछ पीएचडी थीसिस पढ़िए, कुछ सिनॉप्सिस पढ़िए, थोड़ी क्लैरिटी लाइए. अब आपको पता है गूगल वन ऑफ द बिगेस्ट रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड. आप तो यहाँ तक भी कर सकते हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज, एमआईटी की सेशंस जाके देखिए, पढ़िए, बहुत सारे रिसोर्सेज है. लेकिन बात यह है कि अपनी खुद की मेहनत, लगन, इच्छा शक्ति की मुझे बहुत अच्छा काम करना है अगर मैं अपना फ्यूचर इसी डोमेन में बनाना चाहती हूँ, तो मुझे उसके लिए बहुत मेहनत से कार्य करना है. ये वाली चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो उसके साथ ये छोटी छोटी बातें तो डेफिनेटली हो ही जाएंगी. कोई कुछ कहना चाहता है? So I know everybody is thanking me. तो सब लोग यही कह रहे हैं थैंक यू का मतलब है प्लीज जाओ मैडम, राइट? रिक्वेस्ट है, पीपीटी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं प्लीज? हाँ, मेरे को कैसे करना है मुझे नहीं पता है. मैं भेज दूंगी आपके डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च पर. हाँ मैम, थैंक यू मैम. हाँ, फिर वो आपको भेज दूंगी मैम. यस प्लीज.
मैम मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, यानी कि क्लास के अलावा मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे एक आप बुक रिकमेंड कर देंगे लिटरेरी थ्योरी के लिए? लिटरेरी थ्योरीज के लिए मैम बहुत सारी बुक्स हैं। आप एक बार Amazon सर्च मारिए, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी, बस मैं ये कहूंगी कि जो लेटेस्ट एडिशंस होते हैं उनका फायदा ये है कि अपडेटेड नॉलेज रखते हैं वो, बट जो पुराने कन्वेंशनल ऑथर्स है उनका पूरा 21st सेंचुरी 20th सेंचुरी की चीजें उसमें नहीं मिलेंगी मैम। सो कोई भी बुक लीजिए, बट एक अच्छा पब्लिशर लीजिए और एक लेटेस्ट वर्जन लीजिए, ये दो चीजें ध्यान रखिए। अभी कोई भी मेरे पास लीजिए। पीके नैयर की है एंड MS नागार्जुन की है, हाँ। और इसमें क्रिटिसिज्म में भी है, बट हाँ, वो आप मुझे इंटरप्रेट करने पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है पीके नैयर की में। हाँ, आप बस लेटेस्ट एडिशन, अच्छा पब्लिशर, अच्छा नया वर्जन, बस ये ध्यान रखें, कोई भी ले लीजिए, बहुत है जी। थैंक यू। थैंक यू। So thank you to all. Thank you. Thank you, ma'am. Audience. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. Thank you, ma'am. Good evening. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.